Hello. So in this video, we will be discussing the set 4 of reasoning section of CAT 2019 slot 1 paper. Fine. So the set was like, okay. So Princess, Queen, Rani, Samrani were 4 finalists in dance competition. Ashman, Badal, Gagan and Diyo were 4 music composers who individually assign items to the dancer. Each dancer has to individually perform in 2 dance items assigned by different composers. The first item performed by 4 dancers were all assigned by different music composers. No dancer performed her second item before the performance of the first item was by any other dancer. तो एक बार इन सबको डिस्कस कर लेते हैं कि what all information is given to us. So each dancer has to individually perform in 2 dances. Fine. So there are 4 dancers. So in total there will be 8 performances. The first items performed by 4 dancers were all assigned by different music composers. तो सबको डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर ने असाइन किया है 1 to 4 में देवर डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर नो डांसर परफॉर्म हर सेकंड आइटम बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट आइटम बाय एनी अदर डांसर तो सबने पहले अपना फर्स्ट डांस परफॉर्म किया है उसके बाद ही उनका सेकंड परफॉर्मेंस आया है द डांसर्स परफॉर्म देयर सेकंड आइटम इन द सेम सीक्वेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ देयर फर्स्ट आइटम उनका सीक्वेंस सेम था जिस सीक्वेंस में उन्होंने फर्स्ट परफॉर्म किया था उसी सीक्वेंस में उन्होंने सेकंड भी परफॉर्म किया था फर्दर सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस no composers who assigned item to princess assigned any item to queen. No composer who assigned item to Rani assigned any item to Samrani. The first performance was by the princess. This item was assigned by Badal. Last performance was by Rani, assigned by Gagan. The items assigned by Ashman were performed consecutively. The numbers of performance between this item assigned by each of the remaining composers was So all this was the information that was given to us. So important information जो भी है वो आपके सामने है पूरी. What you need to do is just pause the video और एक बार सेट को सॉल्व करने का ट्राई करें. Fine. चलिए. So let's start solving this set. कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व एक बार देखते हैं. तो जो important information थी उसको हम यहाँ कैरी कर लेते हैं. Information वो एक तो 1 से 4 तक डिफरेंट कंपोजर्स थे सबके पहले फर्स्ट परफॉर्मेंस हुए हैं उसके बाद उनके सेकंड परफॉर्मेंसेस हुए हैं टोटल ऑफ 8 परफॉर्मेंस वाज देयर द डांसर्स परफॉर्म देयर सेकंड आइटम इन द सेम सीक्वेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंस जैसा उन्होंने फर्स्ट में किया तो ये सारा जो सीक्वेंस है डांसर्स का वो भी सेम रहने वाला है ठीक है तो ये सारी इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू अस अब आगे चल के सेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ओके सो No composer. Now what we'll try to do is हमने ये एक टेबल बना ली है जिसमें there were 8 performances performed by अभी हमें पता नहीं है कुछ and A B G D ये initials है composer के नेम तो no composer who assigned item to princess assigned any item to queen अभी हमको ये नहीं पता है कि princess को किसने assign किया है so we cannot use this information है ना similarly we cannot use second information as well जिसमें ये given है कि no composer who assigned item to Rani जब हमें ये नहीं पता कि रानी को किसने assign किया है we cannot use this information. Third पे आते हैं the first performance was by princess. So first was by princess assigned by Badal. So B assigned this item to princess. Fine. अब B क्योंकि first item assign कर चुके हैं तो first item आप कोई और assign नहीं कर सकते और बादल क्योंकि सारे जो first 4 performances थे वो by different composers थे तो बादल अब first 4 में किसी और को compose नहीं कर सकते. Fine. तो इससे मैंने ये take out cross कर दिया इस तरह से The last performance was by Rani. Last performance जो थी वो रानी की थी. This item was assigned by Gagan and Gagan assigned this item. ये item किसने assign किया था गगन ने. तो मैं गगन पे टिक कर देता हूँ. This item was assigned by Gagan and हम similarly इसको भी कट कर देते हैं. गगन अब और कोई second item से उसमें कुछ और assign नहीं कर पाएंगे. ठीक है क्योंकि they were different composer और 8th जो आइटम है वो गगन के अलावा और कोई कंपोज नहीं कर पाएगा तो मैंने उनको भी कट कर फाइन द आइटम्स असाइन्ड बाय Ashman were performed consecutively now we know that जो फर्स्ट 4 परफॉर्मेंसेस हैं वो बाय द डिफरेंट कंपोजर्स हैं मतलब सारे कंपोजर का एक एक परफॉर्मेंस आना चाहिए इन फर्स्ट 4 परफॉर्मेंसेस सेकंड जो लास्ट 4 परफॉर्मेंसेस हैं उनमें भी सबका एक एक आना चाहिए पर Ashman के consecutive परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं तो दिस इज पॉसिबल इन द केस जब उनके consecutive परफॉर्मेंसेस हो 4th and 5th उस केस में ये पॉसिबल है अब Ashman का 4th है तो यहाँ पर अब वो कोई और असाइन नहीं कर सकते हैं और 4th कोई और असाइन नहीं कर सकते हैं तो हम इन वैल्यूज को क्रॉस कर सकते हैं सिमिलरली हम यहाँ पे भी ये क्रॉस कर सकते हैं
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइन्ड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज द सेम। एशमैन को छोड़ के जो भी कंपोजर्स हैं उन्होंने जो आइटम असाइन किए हैं उनमें सेम डिफरेंस है। सेम डिफरेंस है इसका मतलब हम देखते हैं, एक बार बी की बात करते हैं। नाउ बी ने फर्स्ट आइटम असाइन किया है। नाउ द ऑप्शंस दैट बी हैव इज इधर 6 वाला वो असाइन कर सकता है और 7। अब बी यदि 7 करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल बी 7 करते हैं, तो उनके बीच में दो परफॉर्मेंस के बीच में कितने परफॉर्मेंस हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर हमको जी के परफॉर्मेंसेस में भी 5 का ही गैप रखना पड़ेगा। दैट मींस 1 2 3 4 एंड 5। तो जी यहां पर आना चाहिए और फिर डी के परफॉर्मेंस में भी 5 का गैप रहना चाहिए। तो डी का एक परफॉर्मेंस पे ये ऑप्शन बचेगा। तो 1 2 3 4 5। अब यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है डी के पास। दैट मींस जो बी का फर्स्ट ऑप्शन हमने ट्राई किया था, बी को यहां प्लेस करने का, दैट वाज रॉन्ग। बी का यहां परफॉर्मेंस आना चाहिए। अब एक बार चेक करते हैं ये सही है क्या? बी का यहां परफॉर्मेंस आता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू परफॉर्मेंसेस ऑफ बी इज ऑफ 4 परफॉर्मेंसेस, 1 2 3 एंड 4। 4 का गैप है। अब यहाँ पर यदि हम 4 का गैप क्रिएट करना चाहे तो 1 2 3 एंड 4, जी यहाँ पर आ जाता है तो 4 का गैप हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है। ये टिक होते ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया। अब डी के में हम देखते हैं यहाँ और यहाँ टिक करते हैं तो क्या 4 का गैप आ पा रहा है? तो 1 2 3 4 का गैप आ पा रहा है। तो परफेक्टली हमने ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब एक इंफॉर्मेशन वाज लेफ्ट कि जो इन्होंने परफॉर्म किए हैं डांस, दैट वाज इन द सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस एज इन जब पी का फर्स्ट यहाँ पर आया था तो जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस, जो सेकंड हाफ वाले परफॉर्मेंस है उसमें भी पी फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, आर सेकंड वाले में लास्ट में थे, तो यहाँ पर भी आर लास्ट में ही आने चाहिए। फाइन। नाउ लेट अस चेक कि इतना करने से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, of this set. Okay, which of the following is true? So the third performance was composed by Ashman. No, third was not by Ashman. Ashman ने तो fourth और fifth की है, so this is wrong. The second performance was composed by Dew. No, second Dew से नहीं था. Second was composed by, no, it is correct. D ने ही किया है second, so this is correct. एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं बाकी की। The second performance was composed by Gagan. No, Gagan ने नहीं किया था, Gagan ने third किया था, so this is wrong. Third performance was by D. No, third नहीं की D की। So the correct answer to this question is option second. Moving to second question of this set. Second question was, okay, which of the following is false? Q did not perform in any item composed by Gagan. देखिए Q गगन के आइटम में आ सकती है या नहीं आ सकती, तो देखते हैं हम। Q उसमें आ सकती है। इनफैक्ट जो हमने फिल नहीं किया है Q और आई थिंक एक और जने को हमने फिल नहीं किया है, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, हम बाकी के केस डिस्कस करते हैं। रानी डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज बाय बादल। रानी ने बादल के किसी भी आइटम, जो भी बादल ने कंपोज किया है उसमें काम नहीं किया, तो दिस इज करेक्ट। रानी ने जो काम किया है वो एशमैन ने किया है और गगन में किया है, तो दिस इज करेक्ट। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था। समरागिनी डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज बाय एशमैन। देखिए जो एशमैन के आइटम्स थे उसमें एक में रानी है, एक में प्रिंसेस है, तो ये भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। वी आर लुकिंग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। प्रिंसेस डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज बाय ड्यू। देखेंगे प्रिंसेस के जो दो आइटम्स है, एक में बी ने किया है, एक में ए ने किया है, डी ने किसी में भी नहीं किया, तो ये भी सही है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज दिस वन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। फाइन। So the correct answer to this question is option A. Moving to third question of the set. The sixth performance was composed by B, Badal. Last question of this set. Okay, the last question is, which pair performance was composed by the same composer? Same composers के performances कौन-कौन से थे? Third and seventh. तो third में here it is G and seven में is D, तो ये तो नहीं है। First and seventh, first में is B and seventh में is D, ये भी नहीं है। First and sixth, first में is B and sixth में is also B. This is the correct answer. Fine. Although हम ये दोनों भी फिल कर सकते थे, but इनको बिना फिल किए भी हमने ये सेट सॉल्व कर दिया है। Better will be to complete the set. आपको ये फिल करना चाहिए। Although ये जो 4 क्वेश्चन थे ये बिना फिल किए भी कंप्लीट हो गए हैं। Fine. So I hope ये सेट आपको क्लियर होगा। Thank you so much.